In previous class, we had seen within two indicators, growth rate of national income and growth rate of per capita income. Both these indicators as an indicators of economic development, they both have certain limitation, and just because of that limitation, it is considered that they are not a proper measure or proper indicators to measure an economic development. Therefore, a third indicator, which is also known as an improvement in quality of life, and PQLI, which is known as a physical quality of life index, is presented. This is a third indicator, and it has been said that physical quality of life index is a better indicator compared to a national income and per capita income. So let's go with it. The objective of economic development is to improve the standard of living of people. Main objective of an economic development is to improve the standard of living of a people. For that, if economic development has taken place and how much more or less is to be measured. हमको कब पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है? इफ़ इट इज़ मेजर्ड, वेदर इट इज़ इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो उसको मेजर करना पड़ेगा, और मेजर करते समय ज़्यादा हुआ है कम हुआ है ये हमको पता चलेगा. एंड फॉर दिस physical quality of life index as a better indicator is accepted, and to measure the economic development, PQLI is accepted as a better indicator compared to national income and per capita income. What is physical quality of life index? Physical quality of life index क्या है, किसे कहते हैं हम physical quality of life index? Our quality of life डिपेंड अपॉन द फूड डेट वी कंज्यूम, द गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्सन उसकी फैमिली कंज्यूम कर रही है उसके ऊपर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की जजमेंट होती है. ओके, सो व्हाट आर द गुड्स दैट इज कंसिडर्ड टू मेजर अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी विल स्टडी. सी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग depend on different types of goods and services. It is very clearly given that quality of life depend upon the goods and services that a person consumes. मतलब एक person जो भी goods and services consume कर रहा है उसके ऊपर उसकी quality of life decide होती है. The standard of consumptions refers to the standard of consumptions मतलब कौन कौन सी चीज़ को considered किया गया है qualities measure करने के लिए. First one is consumptions of food. फूड में सारे आ जाएंगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, दैट मीन्स द सॉलिड फूड एंड लिक्विड फूड दोनों आ जाएंगे. एंड उसमें ये भी इंक्लूड कर दिया जाएगा कि प्रॉपर कैलोरी, प्रॉपर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स हमको जो भी चाहिए वो हम प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं. यस, सो व्हाट काइंड ऑफ फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग. सेकेंड इज फ्यूल, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल वी आर यूजिंग. इट कैन बी गोबर गैस, इट कैन बी केरोसिन, इट कैन बी वुड, इट कैन बी LPG गैस. And the other non-durable good. Non-durable goods means what? The good that does not last for the longer period of time. Yes, तो perishable goods आ जाएगा. So other non-durable goods are included. Second, consumptions of durable and semi-durable goods. ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या आ जाएगा कि हम घर में कौन सा टीवी यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन्स वी आर यूजिंग और नॉट, रेडियो, आयरन, लैपटॉप, कंप्यूटर, बेसिकली ऑल द गैजेट्स, मिक्सचर मशीन, ब्लेंडर मशीन, ऑल द गैजेट्स आर इंक्लूडेड. सो ये जो है ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स में ये सारी चीज़ को इंक्लूड किया गया है. द थर्ड इज कंजम्पशंस ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम बाय द पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. कंजम्पशंस ऑफ सर्विस में क्या आ जाएगा, कौन कौन सी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, ट्रांसपोर्टेशन, दिस ऑल are under the categories of services. So consumptions of services during a period of time by a person or a group of people. एक person और एक group of people during a particular period of time वो कौन कौन सी services use कर रहे हैं, that is included in it. This consumption standards of living और living standard determines the physical quality of life. मतलब ये जो तीन consumption measure है इसमें से वो कौन कौन से measures कौन कौन से यूज़ करें, कैसी क्वालिटीज़ यूज़ कर रहे, फूड की, ड्यूरेबल गुड्स की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, और कौन कौन सी सर्विसेज वो यूज़ कर रहे, वो डिसाइड करेगा कि हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ. हैंस कंजम्पशंस और लिविंग स्टैंडर्ड इज आइडेंटिफाई एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. इफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल गोज अप
it can be said that physical quality of life has gone up. अगर living standard improve होती है तो हम बोलेंगे कि consumptions standard of a people have gone high, तो हम बोलेंगे कि standard of physical quality of life index have gone high. Next is aspects which are included in the physical quality of life. The consumptions of goods and services consumed by an individual during a period of 1 year, यहाँ पर पीरियड दिया है 1 year, determine the physical quality of life. मतलब within the periods of 1 year, whatever goods and services a consumer is consuming or a people or their family is consuming decide their qualities of life. The following are the determinants included in the list of goods and services. The first one among them is a food. फूड जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? यस, तो फूड में है कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स, ओके. और फूड्स बहुत ज़्यादातर मैटर करता है कि whether actually we need a foods or not, because sometimes we are taking more calories, more protein which our body does not need it. So basically food proportion है that according to your age, according to your need and according to your work, you are taking a proper proportions of food or not. The food intake also depend upon the where you live. Maybe rural people are doing hard work, so they need more proportions of food compared to the rural people. Yes, so food proportion depend upon your need, your age, your work and where you live. That is whether you live in rural area and urban area. So according to your age, if you are consuming a proper food or not. Second is health and medical services of doctor to population. Of doctor to population means what? कि per person कितने डॉक्टर हैं. Okay, if population is 1 crore, so to look after that 1 crore population, how many doctors are available in India or in our country? So that depends. And in India it is said that in India population is more and doctors are less as per the requirement. So our health and medical services, that is of doctor to population. Third, housing and clothing. Housing and clothing, that is number of house, average number of people living in each house. Yes, housing ये डिसाइड करता है कि हाउस की साइज़ कितनी है, घर बड़ा है या छोटा है, साइज़ वो है. उसमें अकॉर्डिंग टू द साइज़ वेदर द प्रॉपर पॉपुलेशन आर देयर और नॉट. किसी किसी का घर बहुत बड़ा है, रहने के लिए 2 है, किसी का घर छोटा है, रहने के लिए 10 लोग हैं. सो हाउसिंग एंड क्लोथिंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द हाउसिंग एंड नंबर ऑफ हाउसेज, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउसेज. यहाँ पर एवरेज कंसिडर किया गया है. Fifth determinants or fifth aspects is education and entertainment. Percentage of population getting primary, secondary education, TV, theatres and etc. Education में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? Whether the people जो प्राइमरी एजुकेशन जिसको लेना चाहिए वो कितने हैं, सेकेंडरी है या नहीं, तो प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. देन एंटरटेनमेंट में क्या आएगा कि गैजेट्स लाइक वीडियो गेम्स वी आर प्लेइंग, टीवी है, आउटिंग्स के लिए हमारे पास थिएटर है, गेम जोन है. यस, ये सारे एंटरटेन में आ जाएंगे. व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, इट इज़ बीन सेड कि इंडिया में ओनली 72 पीपल आर लिटरेट और 26% अभी भी इलिटरेट है. तो हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी भी अच्छी नहीं है बिकॉज लिटरेसी रेट शुड बी हाई. फिफ्थ वन इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ओके, ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस. तो ट्रांसपोर्ट में हम यहाँ पर देखो द एक्सटेंड ऑफ रोड, रेलवे लाइन एंड नंबर्स ऑफ टेलीफोन पर कैपिटा. यस, तो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाएगा? रोड एंड रेलवे. व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द रोड, वेदर द कच्चा रोड है या पक्का रोड है. अगर रेलवे है तो रेलवे की लाइन कितनी लंबी है, दैट इज़ हाउ लॉन्ग इट इज़ सेटअप. व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में आ जाएगा टेलीफोन सर्विसेज. यस, टेलीफोन, मोबाइल, अभी तो सबके पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल सबके पास है या नहीं. When it compares to telephone services, maybe the people in urban area is having a telephone services, but still in rural area we are lacking in telephone services. Yes,
The sixth one is energy, per capita energy consumption. एनर्जी में आ जाएगा सॉलिड एंड लिक्विड फूड दैट वी आर इनटेकिंग, वेदर द सॉलिड एंड लिक्विड फूड्स जो भी हमारे बॉडीज़ को चाहिए वो हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सो वो आ जाएगा एनर्जी में. सेवेंथ वन इज population having access to pure drinking water, whether the people of rural and urban जितने भी हैं whether they are getting in pure drinking water. If yes, then we can say that it is good, physical quality of life is good, and if it is no, then we can say that we need to improve our physical quality of life. Next is average life expectancy. Average life expectancy की मैं अगर बात करूँ तो normally in India it is believed that कि हमारी life expectancy 68 years है. यस बट अगर आप अपने दादा दादी को देखो तो सब में भी 80, सब में भी 90. यस बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सबकी 80-90 है. एवरेज कैसे निकलती है, सबसे लीस्ट जो डेथ हुई है और सबसे हाईएस्ट एज की जो डेथ हुई है उनको डिवाइड करके हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड कर दें. एंड इंडिया इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 68. बेसिकली एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स व्हाट कि इफ़ अ पीपल इज़ बॉर्न how many year he or she is expected to live, that is average life expectancy. Third is infant mortality rate. Infant mortality rate means what कि out of every 1000 children born, out of every 1000 children born how many have died before completing the 1 year. अगर infant mortality rate high है तो वी नीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमेशा लो होनी चाहिए, मतलब डेथ रेशियो जो है बच्चे का बिफोर कंप्लीटिंग द 1 ईयर शुड बी लो. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 39 पर 1000 चाइल्ड हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हमारी 39%. देन ड्रेनेज फैसिलिटीज़. व्हेन इट कम्स टू ड्रेनेज फैसिलिटीज़ तो वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रीज दोनों आ जाता है. यस वेदर वी हैव एन प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हाउस होल्ड में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, जो भी हम कचरा फेंक रहे हैं वेदर इट इज़ सॉलिड और लिक्विड बेस्ड, वेदर द ड्रेनेज फैसिलिटीज़ प्रॉपर देयर और नॉट. सो दिस इज़ योर 10 एस्पेक्ट्स फ्रॉम विच वी कैन जज हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ. Further it has been said that if there is an improvement in the above 10 aspects, then it can be said that there is an improvement in the physical quality of human life. अगर ये 10 aspects में improvement हो रहा है तो हम बोलेंगे कि physical quality of life is going high. But if there is no improvement, then we have to find out कि कहाँ पर improvement की ज़रूरत है and remedial measures can be adopted to increase the rate of development. ज़रूरी नहीं है कि हर एक 10 में से सारे 10 में ही इम्प्रूवमेंट हो. इम्प्रूवमेंट ड्रेनेज में होगा, मे बी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ नॉट इम्प्रूविंग या एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन इज़ नॉट गेटिंग अ प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़. यस सो किसी भी एक एस्पेक्ट्स में कमी हो तो भी हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डाउन जाएगा. सो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड इन ऑल द 10 एस्पेक्ट्स. एवरी इंडिकेटर कैन बी रिलेटिवली एक्सप्रेस. यहाँ पर दिया है कि हर एक इंडिकेटर्स को हम एक एक करके एक्सप्रेस करते हैं. दैट इंडिकेटर्स विच हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू इज़ गिवन 100 पॉइंट्स, मतलब कि ड्रेनेज फैसिलिटीज़ अच्छी है तो 100 पॉइंट्स. नाउ डेवलप कंट्रीज़ गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. डेवलप कंट्रीज़ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंस दे रही है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को. नेक्स्ट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज इन PQLI. Increase in national income and per capita income are not real indicators of economic development as it has number of limitation. This I have already discussed with you before that only national income and per capita income से हम ये measure नहीं कर सकते कि development हुआ है, क्योंकि दोनों के बहुत सारे limitation हैं. And increasing income of the countries is concentrated in the hand of few people, which is not development. Yes, national income जो increase हो रहा है वो ज़्यादातर रीच के हाथ में जा रहा है एंड रीच इज़ बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज़ बिकमिंग पुअर. बट डेवलपमेंट वो नहीं है कि व्हेन रिच लिविंग स्टैंडर्ड गोज हाई, जो वो है उससे वो ज़्यादा हाई फाई हो रहा है तो वो वो डेवलपमेंट नहीं है. एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? व्हेन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पुअर राइजेस. जब पुअर पीपल की लिविंग स्टैंडर्ड हाई होती है देन वी कैन से दैट डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस. So the development of a country should be such that living standard of the poor
rises. The basic requirement of the citizen should be fulfilled. Yes, basic requirement जो citizen की है वो fulfilled होगी और जब उसकी standard of living high होगी, then we can say that development have taken place. Keeping this in mind, Morris Davis Morris, just underline this, Morris Davis Morris have presented the physical quality of life index, which in short known as in PQLI. Who have presented the physical quality of life index? Morris Davis Morris have presented it, and in short it is known as in PQLI. In this index, betterment of physical quality of life of human being is considered as economic development. इसने किसके ऊपर ध्यान दिया है? मॉरिस डेविस मॉरिस ने क्या बताया कि betterment in physical quality of human life. Okay. The level of physical quality of life determine the level of income development. मतलब कि वो कौन सी क्वालिटीज़ की लाइफ जी रहा है, वो कौन से फूड क्लोथिंग जो हमने 10 एस्पेक्ट्स देखे वो डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है. इफ़ एनी कंट्रीज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ हायर देन दैट ऑफ द अदर कंट्री, देन दैट कंट्री इज़ कंसिडर्ड एज मोर डेवलप. अगर किसी कंट्रीज़ की फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हाई है कंपेयर टू अदर कंट्री, देन दोज कंट्रीज आर सेड टू बी मोर डेवलप. देर आर 3 स्टैंडर्ड्स टू मेजर द फिजिकल क्वालिटी विच आर डेपिक्टेड हियर. 3 स्टैंडर्ड मेजर दिए हैं. ये जो है 3 फैक्टर्स है जो हमने 10 पढ़े वो एस्पेक्ट्स है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. 3 फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स है और वो 10 एस्पेक्ट्स है विच आर इंक्लूडेड. द फर्स्ट फैक्टर इज एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन. यस, लिटरेसी लेवल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन सिचुएशन ऑफ एजुकेशन. हमारी लिटरेसी लेवल कितनी है? मैंने पहले भी बोला था हमारी लिटरेसी लेवल इज 70. Our literacy level is 74. Literacy level of a country determines situations of education. The percentage of population educated out of total population determines the education. Okay, out of total population कितने educated है वो होता है extent of education, and our literacy level is 74. That means nearly 26% are still illiterate. Second, life expectancy. I have told you about the life expectancy also. कि if a child is born, yes, how many year he or she is expected to live, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक एवरेज है क्योंकि वो लोवेस्ट और हाईएस्ट को डिवाइड करके हम ऑब्टेन करते हैं. So number of year a child is expected to live at the time of birth is known as an average life expectancy. It shows the average life. If life expectancy rise, it can be said that the medical services of the country is good. अगर life expectancy बढ़ रही है, अगर हमारी life expectancy 68 है तो average life expectancy अगर बढ़ के 78 हो जाती है या बढ़ती है उससे ज़्यादा, then we can say that our medical services is good. Third is infant mortality rate. What is infant mortality rate? Out of every 1,000 children born in a year, how many have died before completing 1 year? Yes, the number of infant who dies out of every 1,000 infant before completing the first year is known as an infant mortality rate. और हमारी infant mortality rate है 39 per 1,000 children. If infant mortality rate falls, it can be said that healthcare services of the country is good. अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि डेथ रेशियोज जो बच्चे की है वो कम होती है, देन वी कैन सेज दैट आवर हेल्थ केयर सर्विसेज आर गुड. सो बेसिकली फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज इक्वल टू लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये तीनों को प्लस करना है, देन वी विल गेट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. उसका डिटर्मिनेशन मतलब उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पीछे है. सो गो टू योर पेज नंबर 22. पेज नंबर 22, रीजन फॉर ओनली 3 इंडिकेटर्स. हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा कि सिर्फ 3 इंडिकेटर्स इंक्लूड किया गया. वाई ओनली दिस 3 इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड? सो देयर इज अ रीजन फॉर इट. फर्स्ट इज डिपेंडेबल डेटा ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी अक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज. मतलब ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी कंट्रीज़ के पास रहता है. सो इट इज़ वेरी इजी टू मेजर. ऑल द 3 फैक्टर्स आर डिटर्मिनेंट
और डिटर्मिनेंट डेपिक्ट द रिजल्ट एंड नॉट द अफर्ट। ये सीधा हमको रिजल्ट बता रहा है, नहीं कि ह्यूमन बींग का अफर्ट्स। एंड ऑल दिस 3 फैक्टर्स आर प्रोडक्ट बेस्ड एंड हैंस फुलफिल द जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन। सो ये 3 रीजन है कि वाई ओनली दिस 3 determinants are included. Now just see literacy. This is very important measuring rod for physical quality of life. Why literacy is included? Because literacy is very important for in physical quality of life. क्योंकि लिटरेसी रेट अगर हाई होगी तो डेफिनेटली एजुकेटेड पीपल होंगे, तो एजुकेशन शोज राइज इन वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, सो ह्यूमन एफिशिएंसी इज नेसेसरी एस्पेक्ट्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट. इसके लिए लिटरेसी को इंक्लूड किया गया है. सेकेंड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये बताती है कि हम कौन से एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, घर का माहौल कैसा है. इफ आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी हाई when our social environment is good. Okay, so increase in life expectancy is a mirror of social environment and well-being. Yes, it is. अगर हम प्रॉपर खाना फूड हम सब अच्छे से खा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशंस, अवर सोशल एंड घर में माहौल अच्छा है, देन डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल इंक्रीज बिकॉज व्हेन पीपल आर नॉट स्ट्रेसफुल, तो मे बी हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल इंक्रीज. सो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि फूड दैट इज कंज्यूमिंग, मेडिकल केयर, मेडिकल सर्विसेज कैसा है, एंड एनवायरमेंटल सिचुएशन, वेदर इज लिविंग इन पोल्यूटेड एनवायरमेंट और नॉट. थर्ड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर. सोशल स्टेटस किसका? यस, तो सोशल स्टेटस ऑफ एन वुमेन और अ मदर. एक वुमेन का स्टेटस कौन सा है? इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल status and welfare. It is an increased reflections of availabilities of pure drinking water, environment of the house, status of women and role of mother. तो ये 3 indicators में ये सारे reflections है या ये mirror है. That is why these 3 indicators are considered to be an better indicators to measure an economic development. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मुलेशंस ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. कैसे पता चलता है कि हमारी लाइफ इंडेक्स कितनी है? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर कि एवरी इंडिकेटर इज़ गिवन एंड वेटेज ऑफ 100. 3 इंडिकेटर्स है, 3 इंडिकेटर्स को हमको 0 से 100 के बीच में पॉइंट्स देना है. ओके, पॉइंट्स देने के बाद तीनों को प्लस करना है. ऑल 3 हैज़ टू बी एडेड एंड डिवाइडेड बाई 3. द डेटा सो डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI. मतलब कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के तीनों इंडिकेटर्स को 0 से 100 तक के ग्रेड देने हैं, पॉइंट्स देने हैं. फिर उसको तीनों को समड अप करना है, मीन्स यू हैव टू डू एन एडिशन, देन इट इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 3 एंड जो भी रिजल्ट मिलेगा वो होगा हमारा PQLI. आई विल शो यू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट हमारा है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन. ओके, हम एजुकेशन को देंगे 50 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 प्लस. सेकेंड इज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम देंगे 60 एंड द लास्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेट दैट बी 70. ओके, इसको हम देंगे 70. Then we have to add it 50 plus 60 plus 70 we will add on. Okay, so 50 plus 60 plus 70 makes 180. 180 divided by 3 is equal to 60. So हमारी देश की physical quality of life index होगी 60. This is how when physical quality of life is obtained. Okay. Next is important aspect. Closer to 100 better is the performance of all 3 indices. हमारा कितना आया? हमने एग्जाम्पल में देखा कि 60 आया. तो अगर वो क्लोजर टू 100 है तो वी कैन से दैट PQLI ऑफ दैट कंट्री इज गुड. इफ इट इज क्लोजर टू 0 देन वी कैन से बैड इज द परफॉर्मेंस. PQLI is always between 0 to 100. Just underline this. It is always between 0 to 100. PQLI can be used to compare 2 states
विद इन द कंट्री और टू डिफरेंट कंट्री। हम PQLI मेजर किसके साथ कर सकते हैं? वी कैन आइदर कंपेयर विद द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया और विद द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, हायर द PQLI मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लोअर द PQLI लेसर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हमारी PQLI की जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसकी वैल्यू 70, 80, 90 होगी, देन वी कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर, एंड इफ इट इज क्लोजर टू जीरो like 10, 20, 40, 50, we can say that it lesser the economic development. Next is positive aspects. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ PQLI क्यों है, क्यों ये बेटर है, ये यहाँ पर बताया गया है कि PQLI इंक्लूड फैक्टर्स लाइक लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, एजुकेशन विच टचेज द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। सारे प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन लाइफ को रिलेटेड है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज बेटर। PQLI इज़ बेटर इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। ये बेटर है क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को टच है। PQLI as an indicator of economic development has lesser drawback as against national income and per capita income. per capita income और national income के limitation से PQLI के limitations कम है, इसके लिए better है। When with PQLI comparison can be made between different countries, different group or different countries, different group of countries और different state of the same countries. With PQLI हम बहुत तरीके से उसको measure कर सकते हैं, we can compare with them different countries, या फिर एक ही countries के different group या फिर different state को हम compare कर सकते हैं। And the last positive aspects is we can create PQLI for urban rural area. Yes, हम अर्बन और रूरल का PQLI निकाल सकते हैं, हम फीमेल और मेल का PQLI निकाल सकते हैं, एंड अ कंपैरिजन कैन बी डन, एंड दिस वे PQLI इज इजी टू कंपेयर। सो दैट वाज योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ PQLI। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सम पॉजिटिविटी देयर इज सर्टेन नेगेटिविटी। तो ये नेगेटिव भी है या तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेशन भी। ओके, सो नेगेटिव एस्पेक्ट्स और लिमिटेशंस ऑफ PQLI। Only 3 aspects are included, and on their basis it cannot be categorically stated whether the country has actually developed or not. To get a correct picture, we need to include other factors also to an existing one. हमने देखा कि PQLI में सारे only 3 aspects are included. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 3, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 3 पे से किसी भी कंट्रीज का डेवलपमेंट जज करना प्रॉपर नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ये एक ड्रॉबैक है, और ये बताया गया है कि मोर एस्पेक्ट हैज़ टू बी इंक्लूडेड। सेकेंड सेज दैट ओनली एवरेज आर डिपिक्टेड। एवरेज क्यों है? क्योंकि तीनों को प्लस किया हमने, फिर तीनों को डिवाइड किया। यस, सो द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम 3 indicators are divided by the values obtained from the 3 indicators are divided by 3 to obtain the PQLI, which is in form of average. Okay, average of 3 aspects of a country does not show the prominence or drawback or the backwards of each indicator. Yes, यहाँ पर 3 आया, हमने एक एग्जाम्पल में देखा था। लेट्स सी वंस अगेन। ये एग्जाम्पल में हमने देखा कि 50 एजुकेशन है, 60 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और 70 है। ये तीनों को एवरेज किया तो निकला 60। मतलब ये सिर्फ ये बताता है कि कंट्रीज़ की एजुकेशन रेट भी 60 है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 60 है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 60 है। बट एक्चुअल में ये नहीं है, ये किसी का ड्रॉबैक नहीं बताता है। मतलब कि ये बता नहीं रहा है कि एक्चुअल में एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन 50 है जो हमारी वीकनेस है। यस, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ मेजरिंग। Okay, average of 3 aspects and have the prominence or backward of each indicator. So decisions cannot be made on the basis of average. Average के basis पे हम decision नहीं ले सकते कि where the improvement is needed. Third, if a country's present PQLI is high, it cannot be generalized that economic development is high as against the other country. अगर PQLI हमारी अभी high है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी countries से high है। वो मे बी फ्यूचर में हमारी PQLI डाउन हो सकती है। दैट इज वाई इट हैज बीन सेड दैट इफ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज हाई, इट कैन नॉट बी जनरलाइज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई एज अगेंस्ट अदर कंट्री, क्योंकि अदर कंट्री की PQLI हाई हो सकती है और एट अ लेटर स्टेज हमने देखा था ना कि आफ्टर सर्टेन टाइम डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, तो वी कैन नॉट जनरलाइज दैट। फोर्थ इज
It is not right to give equal weightage 100 to all the indicators. All three aspects do not have same importance in human life. किसी के लिए एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन लाइफ के हर एक की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, बट फिर भी वेटेज सबको 100 दिया गया है. सो इट इज़ नॉट अ करेक्ट. यस, सो इट इज़ नॉट करेक्ट टू गिव एन इक्वल वेटेज टू all the indicators. Fifth point says growth of income has high importance in physical quality of life index. High importance is given to in physical quality of life index. Okay, and ignoring that is not possible. Growth of income has high importance. Income को कहीं पे भी indicate नहीं किया गया है. Yes, तो income होगा तो ही standard of living improve होगा. बट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में 3 ही इंडिकेटर्स दिए गए हैं, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इनकम को कहीं पे नहीं दिया गया है. अगर इनकम हाई होगा तो ही वो प्रॉपर एजुकेशन भी ले पाएंगे, तो ही वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉपर फूड कंजम्पशंस वो सब कर पाएंगे. एंड देन ओनली द रोल ऑफ मदर एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन विल राइज इन द सोसाइटी. तो इनकम इज अवॉइडेड, और वी कैन से दैट income is ignored, and ignoring it is not possible. Sixth is PQLI for rich countries rises at slower rate. यही मैंने आपको थर्ड पॉइंट में भी समझाया कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो डेवलप कंट्रीज या रिच कंट्रीज की स्लोअर रेट पे बढ़ती है, बिकॉज एवरेज लाइफ कैनॉट इंक्रीजेज बियॉन्ड द पर्टिकुलर लिमिट. बियॉन्ड द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो है नॉर्मली कितनी होगी, 100. अगर हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकल रही है 99, 98, तो डेफिनेटली लेटर ऑन इट विल गो एट अ स्लोअर रेट, बिकॉज एज लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा हम ये एरा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती. मे बी अवर एंसेस्टर्स वर लिविंग मोर एज, but now it is not expected. So PQLI of rich countries rises at slower rate because average life cannot increase beyond the particular limit. Okay, so that was your PQLI. And what is the present scenario of PQLI? After 2003, instead of 3 aspects, the 3 more aspects are included, and qualities of life index, that is QLI, is prepared in the world. तो ये था हमारा PQLI, which is also known as in physical quality of life index, presented by Morris Davis Morris.